Hello guys, welcome to the new episode of Digital Branded Show. And today we have a very interesting guest with the same industry of mine. Yes, it's none other than Pushkar Mehta. So, Pushkar Mehta does more similar things to me. So, without wasting further time, let's get straight to the interview. And I hope guys will like this interview. Don't skip this any part of this interview. Watch till the very end. And don't forget to hit that subscribe button. And make sure you guys get connected and stay updated. Hello Pushkar, welcome to the new episode of Digital Branded Show, and I hope we will be having so much fun because we both are sharing the same niche and we are doing most of the jobs similar. So yes, can we start? Yeah, sure. We can start. And thank you so much for having me. And specifically for the meme marketing thing, I have done interviews around content writing stuff or creative stuff. But for meme marketing, there are a very few people who ask you to be a guest on the show or something like that. Because there are a very few people who are aware of the meme marketing thing, plus who would like to invest in this thing. There are a very few people, and I guess with the help of your platform I would be able to reach out to more number of people that meme marketing is a thing and it's doing wonders for businesses out there, and you should also try it. So yeah, thank you so much for that. Yeah, that's not a big deal because it's an brother to brother help, and also yes, meme has some great potential of growing a brand image, impression, attracting more people, and just having more engagement. At the end of the day, memes also gains more engagement. So most of them doesn't know the impact of memes. And recently, I started my own page on LinkedIn, and most of them followed my page in a hurry. But फिर जब अंदर आने के बाद उनको पता चलता है कि यार ये सारे डिजिटल मार्केटिंग मीम्स हैं. It takes time because memes पे ऐसा नहीं कि तुम सारी चीजों पे मीम बना दो. अगर तुम more specific रहोगे तो more you will grow. तो फिर वही चीज है. तो बहुत सारे लोग ऐसे डाउट हो जाते हैं कि मीम कैसे काम करेगा. मीम्स है तो क्लोथिंग ब्रांड के साथ मीम्स नहीं बन पाते. तो बहुत सारे लोगों के मन में ये तो जस्ट एक एग्जांपल है बिकॉज इस एग्जांपल को भी सॉल्व किया है. अगर आप बेवकूफ पेज पे जाओगे तो वो एक क्लोथिंग ब्रांड है और मीम्स पे कोई भी जगह पे कम नहीं है. So it doesn't mean that whatever your industry is and whatever your niche is, memes हर जगह fit हो जाते हैं. Exactly. I have worked with a brand. I have worked with a startup, Indian startup. जो क्या है यार, एक ना नया एक स्टार्टअप था. वो क्या करते थे कि जो अपने मिल्क में ऐड करने के लिए फ्लेवर्स नहीं होते थे, जो प्रोटीन और समथिंग लाइक दैट. तो उसमें क्या है, वो उनका प्रोडक्ट बहुत यूनिक था. उनका प्रोडक्ट था, वो एक पाइप होती थी, उसी के अंदर फ्लेवर्स होते थे. एंड वो पाइप को बस हमें ना उस मिल्क में डिप करना है. देखा हुआ है, दैट्स इट. उनके लिए मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा. कुछ पाइप से रिलेटेड ही था. मुझे नाम नहीं याद आ रहा. मैंने ये चीज देखा हुआ है, सोशल मीडिया पे देखा हुआ है, बट मुझे भी वो नाम याद नहीं आ रहा. सोशल मीडिया से ही. अरे उनकी बहुत अच्छी फॉलोइंग है सोशल मीडिया पे. अराउंड 15K फॉलोअर्स हैं उनके पेज के. तो या वहां पे जरूर आपने देखा होगा. और इतना यूनिक आउट ऑफ द बॉक्स ब्रांड है, आउट ऑफ द बॉक्स बिजनेस आइडिया है वो. उसके अराउंड हम मीम्स क्रिएट कर सकते हैं. बाहर अगर आप देखो, जोमैटो हर चीज में मीम्स ऐड कर रहा है. उनकी मार्केटिंग का मेन पर्पस ही मीम्स है, और कुछ वो यूज कर ही नहीं रहे. तो बहुत सारे ब्रांड्स है, एप्पल यूज करता है, सैमसंग यूज करता है, तो हर कोई यूज कर रहा है यार. कोई मतलब ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है कि मीम से आपने कुछ पर्टिकुलर ब्रांड्स और कुछ पर्टिकुलर बिजनेसेस में ही इन्वेस्ट कर सकते हो. वो हर चीज में चलेगा. I have seen a dog food business investing in memes, and they are doing well with that. So yeah. No, actually, memes is growing a lot, and recently I see job openings for memes marketing as well. Meme creators, meme writers. Exactly. तो अभी मतलब some of them are adopting that memes culture nowadays, so which is absolutely great. And let's get to this interview with the first question. How did you actually started your journey, and apart from your social media presence, tell us about yourself that your audience and my audience doesn't know.
Well, the thing, most of things, things almost everyone might not know about me is कि I was trying to get into army till Okay. the first semester of my college. So during the first semester of my college, there were summer holidays, and I was at home free, was not doing anything. So I thought कि let's do something online to make to earn some money on a pocket money basis. So I searched on Google about how can I earn money online while being at home. So I got a list of 30 different things, from which I picked blogging, because blogging was something that I was completely unaware of, and I thought it's a simple thing, and I can do it on my own. So I did some research on blogging. What's blogging? How can I do that? And after doing the research, I got to know, this is something that I can really do. So after doing the research, within the next 30 minutes, I was able to create my first blog on blogspot.com and post my first article itself. I posted it, and within the next 24 hours, I was able to, fetch some audience from US, UK. I was completely unaware of the SEO tactics at that time, but still, my article was able to do well in those countries. So I thought, ki, this is something that I can do. And the major purpose of starting my blog was to get the Google AdSense approval, which That's took some time initially. yes. Like 1.5 or 2.5 months, I guess. 2.5 months after I was able to get the Google AdSense approval. Once I got the approval, I got to know that whenever someone clicks on the ads that are on my blog, I'll be paid for that. So what I did is I asked few of my friends to, start clicking on my ads randomly. So they started, but I was completely unaware कि Google intelligent है यार. Google काफी intelligent है, और अगर हम ऑर्गेनिकली या अनऑर्गेनिकली क्लिक्स करवा रहे हैं अपने एड्स पे टू जनरेट गूगल एडसेंस मनी, Google will know about it. So they kept on doing that clicking thing. They kept on doing that clicking thing, my friends. After a month, I got a mail from Google that we are able to see some activity on your Google AdSense account. Some activity ki there are the ads are getting clicks from a specific IP address, Which is not at that time I got to know कि नहीं यार, Google को सब पता चल रहा है, ये क्या हो रहा है. and I told my friend कि नहीं यार, leave it, देखेंगे अगर खुद ब खुद वहाँ पे Google AdSense money generate हुई तो that is a good thing, but stop doing that thing. But उनमें से एक मेरा फ्रेंड था, उसका भरत था, उसका नाम था. तो उनमें से एक मेरा फ्रेंड था, उसने क्या किया, उसने कहा कोई बात नहीं, इसके पैसे जनरेट करवाते हैं, इसका क्या है. वो क्लिक करता रहा, वो अगले हफ्ते, पूरे हफ्ते तक ना वो क्लिक करता रहा. फिर सीधा ना वो ब्लॉक की ही मेल आई मुझे कि आपका ना गूगल एडसेंस अकाउंट अब ब्लॉक हो चुका है. अभी आप बोरे बिस्तर बांधो और निकल जाइए यहाँ से. अभी आप जितना मर्जी जोर लगा लो, आपके इस ईमेल पे तो कभी गूगल एडसेंस अकाउंट नहीं आएगा. तो आई वॉज इन शॉक कि यार ये तो मेरा मतलब, मेरे माइंड में ये था कि ब्लॉगिंग से आई कैन ओनली अर्न मनी थ्रू गूगल एडसेंस. आफ्टर जब वो ब्लॉक हो गया ना, तब मैंने चीजें एक्सप्लोर करनी स्टार्ट की कि नहीं, गूगल एडसेंस ही नहीं है जिससे मैं मनी जनरेट कर सकता हूँ. आई कैन डायरेक्टली गेट इन टच विद क्लाइंट्स whom I can offer my services, और वो मुझे पे कर सकते हैं. तो in that way I started with the content writing thing. और फिर मैंने ना लगभग
1.5 साल सिर्फ और सिर्फ कंटेंट राइटिंग क्लाइंट्स के साथ ही काम किया, जो छोटे क्लाइंट्स थे, जो इनिशियली मतलब एक्चुअली मुझे प्राइस भी नहीं पता था ना कि मैं अपनी सर्विसेज का प्राइस क्या रखूं, इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो आई स्टार्टेड वर्किंग एट 10 पैसा पर वर्ड। ओह माय गॉड। एंड आई वाज लाइक कि यार वाह यार, क्या है, दिन के 300 रुपए बन रहे हैं, अब मजा ही आ गया। हाँ, बट बिकॉज एट द टाइम हमें मतलब ज्ञान तो होती नहीं, ठीक है, पैसे मिल रहे, कितने भी मिल रहे, पैसे ही तो मिल रहे। और क्या। तो मतलब 1.5 साल मैंने लगातार उसी प्राइस रेंज में काम किया, 10 से 20, 20 से 25, इतने प्राइस रेंज में काम किया 1.5 साल। उसके बाद मैंने चीजें एक्सप्लोर करनी स्टार्ट की यार एक्चुअली। उसके बाद आई गॉट टू नो अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग, आई गॉट टू नो अबाउट लिंक्डइन। वहां से जब मैं लिंक्डइन पे आया ना, तब मुझे एक्चुअल अवेयरनेस आनी स्टार्ट हुई कि यार मैं तो क्या मतलब अंडरवैल्यू कर रहा हूँ अपने सर्विसेज को। फ्रॉम देयर आई एक्चुअली गॉट स्टार्टेड। और लिंक्डइन पे मुझे अभी आई गेस मुझे ना शायद 8 या 9 महीने हुए होंगे ऑन लिंक्डइन, and I am able to generate amazing results out of that. So LinkedIn has really helped me to grow. That's great. That's great. What was the age that you actually realized that this will be my passion, फिर इसको प्रोफेशन? कौन से एज? जब यार मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 21। हाँ 21। अभी भी कुछ इतना बड़ा नहीं हूँ, अभी 22 का हूँ। एक साल तूने अभी 1.5 साल बोला, बट 1 साल में कैसे? तो 20 मतलब कॉलेज फर्स्ट ईयर तो तुम्हारा एज अराउंड 19 to 20 होगा ना? You started blogging. So personal branding. Personal branding का कह रहे हो आप? You are asking about the personal branding stuff? Actually, you are starting that into making your passion as your profession. हाँ, जब वो मैं प्राइस वेरिएंट में था ना, 10 पैसा पर वर्ड और 20, जब 10 पैसा पर वर्ड पे था, तब मुझे कभी ये थॉट नहीं आया कि दिस कैन बी माय कप ऑफ टी। बट जब वो 10 पैसा वाला क्लाइंट 20 पैसा पर वर्ड में कन्वर्ट हो गया ना, तब मुझे लगा हाँ यार बहुत, अभी तो चार्जेस डबल हो गए, मजा ही आ जाएगा अब तो हालांकि अवेयरनेस तब भी नहीं थी कि मैं काफी कम चार्ज कर रहा हूँ, बट स्टिल वो एक मूवमेंट ऐसा था कि हाँ यार अभी तो यही है जो भी है। और आफ्टर दैट यार व्हेन आई गॉट इनटू कंटेंट मार्केटिंग स्पेसिफिकली, at that time I came to know कि यार I really enjoy this thing. I really enjoy creating content. I really enjoy doing some creative stuff out there. And that is when I thought कि हाँ यार अब तो बस यही है। और फिर उसके बाद यार जब LinkedIn पे मैं स्पेसिफिकली चला गया ना, उसके बाद मुझे काफ़ी अच्छे क्लाइंट्स मिले, मुझे इंटरनेशनल क्लाइंट्स मिलने स्टार्ट हो गए थ्रू माय पर्सनल ब्रांडिंग स्टफ। एंड फिर उनका प्राइस वेरिएंट तो मतलब पहले वाले से कहीं ज्यादा था। और वो तो बताने की जरूरत नहीं, वो बताने की जरूरत नहीं, पता है। फिर तो वही था जो था। वो तो है। नहीं, मेरा भी शुरुआत हुआ था। मैंने अपना करियर में पहला काम किया था, एक लोगो डिजाइन करके दिया था। ओके। 200 में। आज के टाइम पे मुझे आज उसकी वैल्यू बढ़ गई है, बट मुझे अभी अफसोस हो रहा है कि मैंने गलती कर दी। तब भी उस क्लाइंट ने बताया था कि एक बार सोच लो, तुम जो प्राइस कह रहे हो वही है ना। मतलब वो एक बड़ा कॉर्पोरेट लेवल था। दे आर डूइंग मल्टीपल जॉब्स एट अ टाइम, मतलब बहुत सारे बिजनेसेस थे उनके, मतलब ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए मैंने एक लोगो बनाया था। तो मुझे पता नहीं था कि लोगो क्या चार्ज करते हैं, क्योंकि एट दैट टाइम आई वाज वेरी रॉ। मैं भी तेरे जैसे हाँ कॉलेज खत्म कर दिया, कुछ करना है पैसे कमाने के लिए, स्टार्टअप 200 रुपए। भाई ये देख, एक इमेज, इतना सा इमेज डिजाइन करके दिया, 200 मिला। काम करता है ऐसे, दिन का 10 बना दूंगा, 2000 मिल जाएगा। तब वो मोटिवेशन वहां से शुरू हुआ। फिर उसने एक दिन, मतलब बहुत दिनों बाद, जब सर्विसेज का वो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड एंड होने वाला था ना, तब उसने मुझे बोला कि जो तूने मेरे ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए लोगो डिजाइन किया था ना, उससे पहले मुझे और बड़े एजेंसीज के प्रपोजल आए थे, तो एक बार ये प्रपोजल देख ले। तो एक बड़े कंपनी का प्रपोजल था। उसने बोला कि 5 लोगो वेरिएंट्स देंगे, कलर, वो टाइपोग्राफी वो होता है ना, मतलब लोगो डिजाइन के लिए प्रॉपर प्रपोजल।
हाँ प्रपोजल के एंडिंग पेज पे वो मतलब अमाउंट होता है कि इट विल कॉस्ट अराउंड दिस। तो मैंने वो हाँ प्राइस पढ़ा 12,500। मतलब मेरे आंख खुले के खुले रह गए, कहाँ मेरे 200 और कहाँ 12,500। तो जब तो जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट मतलब खत्म हो गया तो मैंने उनसे पूछा कि एक बात पूछो, आप बुरा नहीं मानोगे, देखो इसने 12,500 में आपको कोटेशन दिया है, मैंने 200 में हाँ काम किया, एक काम करो और एक जीरो ऐड करके मुझे 2,000 दे दो, मुझे बड़ी खुशी होगी। तो तो बट they did नो नो नो, फिर उन्होंने क्या किया कि मुझे 2 क्लाइंट के लीड दे दिए कि तूने जो okay किया, मतलब that time I was very raw, but उन्होंने मेरे टैलेंट को actually they gave my respect, so I will never forget them, even though they are not here, but I will never forget them. तो वो एक तेरे जैसे मेरा भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उस टाइम पे। अरे ये तो कुछ भी नहीं. Initially when I started with the content writing thing, I got in touch with 4 different clients through Skype. मतलब freelancer.com से पिक किए थे और what they do is they directly take you to Skype कि Skype पे आओ, वहाँ पे बात करेंगे. और I got in touch with 4 such clients जिन्होंने मेरे से हफ्ता हफ्ता काम कराया और कहा कि हाँ हम ना वीकली पेमेंट्स रखेंगे, वीकली पेमेंट. तब ना अपफ्रंट के बारे में पता नहीं था और एडवांस पेमेंट्स के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं थी कि एडवांस पेमेंट भी हम मांग सकते हैं एज अ सर्विस प्रोवाइडर. तो उन चारों के चारों क्लाइंट्स ने मुझे ना हफ्ता हफ्ता काम कराया और वो जो चीज़ें हुई ना वो इन अ रो हुई कि पहला क्लाइंट, दूसरा क्लाइंट, तीसरा क्लाइंट, ऐसा हुआ. एंड जब भी वो वीकेंड आता था ना कि हाँ पेमेंट आई, उसी दिन वो साले ब्लॉक कर देते थे. ओ भाई, तो स्कैम कर दिया। ये यार सी अभी people can call me a dumb by listening this कि हाँ यार 4 क्लाइंट्स मिले, तुम्हें तो पहले क्लाइंट में ही संभल जाना चाहिए था, तुम्हें दूसरे क्लाइंट से ऐसे नहीं करना चाहिए था ना. People can call me dumb and that's all right and I accept that. I That am a is bit not dumb. regrettable, मतलब वहां पे रिग्रेट नहीं कर सकते कि हाँ कर दिया तो कर दिया, अब इसमें क्या रिग्रेट करें। नहीं, रिग्रेट की बात नहीं. द थिंग इज कि उन 4 क्लाइंट्स ने ना बहुत कुछ सिखाया जो मैं अभी तक यूज कर रहा हूँ और उनकी वो टीचिंग और उनकी वो लर्निंग्स की वजह से ना मतलब मैं कह सकता हूँ कि मैंने अपना ग्रोथ रेट काफ़ी इन्हेंस किया है. तो उसको मैं इन अ रॉन्ग वे नहीं ले सकता उन टीचिंग्स को. मतलब अगर कुछ हुआ और उसकी वजह से मैं अपना ग्रोथ, मतलब इनिशियली मैं कुछ नहीं कमा पाया, इनिशियली आई वाज अनेबल टू bring out some revenue out of those clients, बट जो उन्होंने मुझे टीचिंग्स दी, चाहे इनडायरेक्टली दी, डायरेक्टली नहीं दी, जो उन्होंने मुझे टीचिंग्स दी उसकी वजह से जो मैं अभी ग्रो कर पा रहा हूँ, तो वो भी तो एक चीज़ है ना. मतलब That's more than money. अगर वो क्लाइंट्स नहीं होते ना, वो 4 क्लाइंट्स नहीं होते, तो पहली बात तो जब ऐसा कोई सीक्वेंसेस हो ना आपके साथ, ऐसे कोई इंसिडेंट्स हो ना आपके साथ, मतलब कभी कभी क्या होता है कि मैंने पर्सनली नोटिस किया है कि पीपल विल गेट इनटू फ्रीलांसिंग और एंटरप्रेन्योरशिप, उनके साथ एक आधी चीज बुरी हो जाती है ना, वो छोड़ देते हैं नेक्स्ट सेकंड. मेरे साथ वो चीज 4 बार हुई एंड दैट टू इन अ रो. ऑल्दो मैं कोई ऐसी नहीं कह रहा कि कोई ये बहुत बड़ी बात है, लोग 100 बार फेल हुए हैं अपनी चीजों पे और 101 बार जब उन्होंने ट्राई किया दे वॉन एट दैट थिंग. बट मेरे बार मैं चलो ठीक है अभी विद गॉड्स ग्रेस मुझे सिर्फ 4 बार ही उस पर्टिकुलर चीज पे फेल होना पड़ा टू गेट सम लर्निंग आउट ऑफ इट. तो मतलब मैं एक्चुअली अपने उस थॉट को पहचान पाया थ्रू दैट इंसिडेंट कि हाँ यार आई एम इनटू समथिंग कि विच आई लव एंड आई थिंक कि कल को अभी एक प्रॉपर बिजनेस के वे में मैं चीज़ें कर रहा हूँ. एक मार्केटिंग एजेंसी है मेरी, है ना, उस चीज़ों में मैं कर रहा हूँ. और कल को अगर कुछ भी बुरा होगा, एक बार बुरा होगा, 2 बार बुरा होगा, तब मैं ये इंसिडेंट हर बार याद करूंगा कि हाँ यार ये 4 चीज़ें मेरे साथ हुई थी, बट स्टिल मैं वो चीज़ करता रहा, ट्राई करता रहा और
उसकी वजह से मैं अभी जहाँ भी हूँ, जहाँ पर भी स्टैंड करता हूँ, वहाँ तक मैं पहुँच पाया। और अगर कुछ आगे बुरा हो भी जाता है तो वेट कर लेंगे, थोड़ा सा ट्राई कर लेंगे, क्या जाता है। So that's really great to hear. And basically हाँ, स्ट्रगल एंड हसल तो होती है हर जर्नी में। बिना स्ट्रगल हसल के तो फिर क्या फायदा जर्नी में मजे लेने का। और क्या। Okay, so and how your branding started? Actually कि branding की शुरुआत आपने प्लान किया था कि नहीं, मतलब करना था, कर दिया ब्रांड बन के? You are talking about the company or my Your personal personal branding? brand, your personal brand, पुष्कर brand. Okay, so the personal branding stuff was not at all planned. Okay. I thought I noticed कि वहाँ पे ना मैंने एक पोस्ट डाली लिंक्डइन पे। लिंक्डइन से स्टार्ट किया था मैंने पर्सनल ब्रांडिंग स्टफ। तो लिंक्डइन पे मैंने एक पोस्ट डाली और उस एक पोस्ट की वजह से ना आई गॉट 50 फॉलोअर्स। मैंने कहा ये क्या हो गया, ये तो बड़ी कमाल की चीज़ है, मतलब ऑर्गेनिक रीच कितनी अच्छी है इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म की। तो दैट वाज द मेन रीजन आई स्टार्टेड माय पर्सनल ब्रांडिंग स्टफ। और ये नहीं कि मैंने पहली बार में ही फिगर आउट कर लिया था कि मुझे क्या पोस्ट करना है, किस तरह की कंटेंट स्ट्रैटेजी क्रिएट करूंगा। मुझे कोई आइडिया ही नहीं था उस टाइम पे जब मैंने स्टार्ट किया कि पहले एक कंटेंट स्ट्रैटेजी क्रिएट करनी होती है, उसके बाद चीजें स्टार्ट करनी होती है। मैंने बस रैंडमली स्टार्ट कर दिया। मैंने बस रैंडमली जो भी मेरे माइंड में मेरे पर्सनल थॉट्स आते थे वो मैंने स्टार्ट कर दिया। अगर आप आज भी मेरी पुरानी जो 9 महीने या 10 महीने पहले वाली जो पोस्ट है ना वो चेक करोगे ना, तो दे आर कंप्लीट पर्सनल एक्सपीरियंसेस। हालांकि एक एक दो दो लाइन के होंगे, बट दे आर कंप्लीट पर्सनल एक्सपीरियंसेस। मतलब जो भी मेरे साथ मेरे बिजनेस के दौरान या फिर जब भी मैंने स्टार्ट किया कंटेंट राइटिंग से जो चीज़ें हो रही थी ना, तो वो चीज़ें मैंने पोस्ट की। बहुत टाइम लगा, आई गेस मुझे लिंक्डइन पे 3 महीने लगे होंगे टू गेट इन टच विद द राइट काइंड ऑफ पीपल जो एक्चुअली मुझे गाइड कर सकें कि लिंक्डइन पे पर्सनल ब्रांडिंग करनी कैसे है, तो आई स्टार्टेड गेटिंग इन टच विद अ फ्यू पीपल। लाइक फर्स्ट जो बंदा जिसका पर्सनल ब्रांड देख के मुझे खुद को पता चला कि हाँ यार ये है पर्सनल ब्रांड, दिस इज पर्सनल ब्रांड एंड व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम जस्ट रैंडमली पोस्टिंग स्टफ अबाउट एनीथिंग। तो वहां से मतलब वो बंदा जब कनेक्ट हुआ उसके साथ मैंने डीएम में चैट किया कि पर्सनल ब्रांडिंग के रिगार्डिंग कोई टिप्स और स्टफ यू कैन शेयर विद मी। तो उसने जब वो चीज़ें थोड़ी बहुत शेयर की ना, तब मेरे माइंड में क्लैरिटी आई कि दीज आर द थिंग्स आई नीड टू वर्क ऑन। और फिर क्या हुआ, फिर लिंक्डइन से आई मूव टू इंस्टाग्राम पे अकाउंट ऑलरेडी था, बट वो पर्सनल ब्रांडिंग वाला स्टफ बिल्कुल नहीं था। वो वहाँ पे हाँ वहाँ पे रैंडम पिक्चर्स वगैरह सब। तो वो क्या वहाँ पे मैंने पर्सनल ब्रांडिंग भी स्टार्ट की इंस्टाग्राम पे। और उसके इंस्टाग्राम पे स्टार्ट करने के बाद ना ये मीम मार्केटिंग वाला स्टफ मेरे माइंड में आ गया। मैं क्लाइंट से डील करने लग पड़ा, क्लाइंट के साथ सम एक्सपीरियंसेस स्टार्टेड हैपनिंग, मतलब पेमेंट डिले होना या ऐसा कुछ, ये सारी चीज़ें चलनी स्टार्ट हो गई। बट पर्सनल ब्रांडिंग वाला स्टफ सॉर्टेड था। तो एक क्लाइंट था बहुत बड़ी कंपनी का, मतलब बहुत बड़ी कंपनी का वो सीईओ था। और उसके पॉइंट से ना मेरी पेमेंट डिले हो रही थी, मंथली पेमेंट की बात की। तो आई वॉज अनेबल टू डायरेक्टली टेल हिम कि मतलब वो एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ था, वो डील भी क्लोज कर सकता था। तो दिस वाज द फियर इन माय माइंड कि नहीं यार ऐसे डायरेक्टली नहीं बोलना। तो व्हाट आई डिड इज आई क्रिएटेड अ मीम ऑन दैट पर्टिकुलर एक्सपीरियंस। मैंने वो मीम बनाई और वो लिंक्डइन पे पोस्ट कर दी। वो लिंक्डइन पे नहीं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दी। और वो इंस्टाग्राम पे जब पोस्ट की ना, इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया उस पर्टिकुलर पोस्ट पे। आई वॉज लाइक कि यार ये चीज़ें सिर्फ मैं नहीं फेस कर रहा, ये चीज़ें सभी फेस कर रहे हैं। तभी उस पर इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया। पीपल वर एबल टू रिलेट टू दोज पोस्ट। और उस पर्टिकुलर चीज जब वो मैंने पोस्ट डाली ना, उसके बाद मैंने अपनी कंटेंट स्ट्रेटजी में एक बहुत बड़ा चेंज किया। वो चेंज किया कि
people were actually relating to my stuff through my memes. तो I thought कि हाँ यार ये memes are something which I should keep on posting and because people are relating to the stuff. और जब आपकी audience आपके stuff के साथ relate करना start कर दे, that is when your personal brand grows. That is when your personal brand grows. तो बस वहाँ से वो मीम मार्केटिंग वाला स्टफ स्टार्ट हुआ. मीम एक्चुअली जब मीम मार्केटिंग मैं अभी कह रहा हूँ, बट तब जब मैंने स्टार्ट किया था तब इट वाज जस्ट अ मीम. मुझे ये नहीं पता था कि मीम की मार्केटिंग भी होती है. मीम मार्केटिंग एक सर्विस है. वो काफी बाद में जाके पता चला कि मीम मार्केटिंग एक सर्विस है. तो आई स्टार्टेड पोस्टिंग स्टफ ओवर देयर. और फिर मैंने एक दिन थोड़ा सा हिम्मत जुटाई कि चलो यार लिंक्डइन पर भी पोस्ट करके देखते हैं. तो वो सेम पोस्ट मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट की. काफी अच्छा रिस्पांस आया. लिंक्डइन पे तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया. बट एक अंकल थे, उनमें से एक अंकल थे, उन्होंने कहा कि लिंक्डइन पे ये सब मत पोस्ट करो. लिंक्डइन इज अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म और ये लिंक्डइन ये सब चीजें पोस्ट करके ना आप लिंक्डइन को फेसबुक बना रहे हो. अच्छा, जैसे कि दूसरे ने तो कोई किया ही नहीं है. अभी तो लिंक्डइन फेसबुक बन गया है. हम हमारे बनाने से कोई फायदा होने वाला तो नहीं है. और क्या. तो आई हैड अ लुक एट हिज प्रोफाइल. और वो क्या करता था, उसको मैंने देखा वो ना कॉपीड कंटेंट पेस्ट कर रहा था, अपने पोस्ट कर रहा था अपनी लिंक्डइन से. तो आई रिप्लाइड टू दैट अंकल. आई एक्चुअली रिप्लाइड टू दैट अंकल कि अंकल मतलब आप लोगों का कंटेंट कॉपी करके अपने एंड से पोस्ट कर रहे हो अपने नाम से, उससे लिंक्डइन फेसबुक नहीं बनेगा. बट जो मैं अपना क्रिएटिव स्टफ, जो यूनिक कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ मीम्स आई एम पोस्टिंग, उससे लिंक्डइन फेसबुक जरूर बन सकता है. थैंक यू सो मच फॉर दैट. दैट वाज एन एपिक रिप्लाई. ना आते हैं that's ऐसे. how the meme marketing started. That's how the meme marketing specifically started. ऐसे लोग होते हैं, मैंने बहुत बार देखा हुआ है. हाँ, अरे अभी भी हैं. एक बंदा है, एक मतलब उसका अभी भी वो मेरी पोस्ट, पहले वो मेरा कनेक्शन था, बट जब मैंने देखा ना कि यार वो बंदा बड़े ही ज्यादा नेगेटिव और आउट ऑफ सिलेबस वाले कमेंट्स कर रहा है मेरी पोस्ट पे, तो मैंने उसको कनेक्शन से हटा दिया. बट पता नहीं मैंने कनेक्शन से हटा भी दिया, बट स्टिल ही इज एबल टू लिंक्डइन पे देख सकते हैं. ऐसा नहीं तुम्हें फिर अपना अकाउंट पूरा प्राइवेट करना पड़ता है, बट फिर भी दे विल बी एबल टू सी योर पोस्ट एंड एक्टिविटीज, सो वी कांट हाइड दैट. बट वो स्टिल वो मेरी पोस्ट देख पा रहा है और स्टिल वो पोस्ट पे कमेंट भी कर रहा है और उसी तरह के कमेंट कर रहा है. और 10 से 12 पोस्ट हो गई होंगी, उसने सभी पोस्ट पे कमेंट किया है. और 10 से 12 पोस्ट में मैंने किसी का रिप्लाई नहीं किया उसके कमेंट का, बट स्टिल ही इज पोस्टिंग इट. अभी एक टिप दो. 12 कमेंट का स्क्रीनशॉट ले. हाँ. एक इमेज पे 1 by 1 ऐसे मतलब अलाइन कर दे 12 कमेंट्स को. नीचे बस एक बड़ा व्हाइट बॉक्स पे कुछ लोग लिंक्डइन के प्रोफेशन के नाम पे ऐसे भी लोग रहते हैं लिंक्डइन पे, बस. और कुछ नहीं चाहिए, कैप्शन कुछ भी मतलब ऐसे डाल दे, फिर ऑडियंस देख लेगी क्या करना है करके. The thing is फिर यार उसकी ना प्रमोशन हो जाएगी. प्रमोशन कहाँ से हो जाएगी? नहीं, थोड़ी फेम तो उसको भी तो चाहिए होगी, तभी तो वो बार आके भौंक रहा है. इट्स मीन लाइक नॉट भौंक रहा है, बट नो भाई बहुत ही जनरल टॉक्स हो गया है. तो फिर वही बात हुई कि एक बंदा हम भाव नहीं दे रहे फिर भी आके भौंक रहा है, तो फिर उसको बिस्कुट देना ही पड़ता है. तो एक काम कर, एक दिन लेके उसका एक पोस्ट बना दे, तुम्हारी भी पॉपुलैरिटी हो जाएगी, तो उसकी भी थोड़ी बहुत छठीदारी मिल जाएगी. फिर आके मैं इतना कह सकता हूँ, उसके बाद या तो वो चेंज होगा या फिर आके तेरे डीएम पे बात करेगा. इतना तो मेरे साथ एक बार हुआ है, इसलिए मुझे पता है. जरूर, इस पे मैं जरूर वर्क करूंगा. नहीं, मेरे पास भी ऐसा है कि मतलब इस लाइक अराउंड उसका एज कुछ 19 था. मैं मतलब रिसेंट अभी 6 महीने पहले था. मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग ब्रांडिंग के बारे में कंटेंट डाल रहा हूँ. एक रैंडम डीएम आया मुझे, हाय सर, हाय,
बोल रहा कि सर यू वांट डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, आई प्रोवाइड। मैंने बोला कि मैं क्या करता हूँ, मैंने उसको ऐसे ही पूछा कि मैं क्या करता हूँ। बोला कि सर यू हैव लिंक्डइन प्रोफाइल, तो आपको डिजिटल मार्केटिंग चाहिए ही चाहिए। बोला लिंक्डइन प्रोफाइल के लिए डिजिटल मार्केटिंग मुझे क्यों चाहिए? मैंने बस ये सवाल पूछा उससे, उसको समझ नहीं था कि मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर मैंने उसको बोला कि I don't think that you are aware of my profile or what the content I share and what I do actually. So just take few minutes and explore my profile and then come back and we will talk what you are actually wanted to do. तो उसने प्रोफाइल देखा, सीधा मेरा नंबर मांगा, बट उसको इतना भी नहीं पता कि कॉन्टेक्ट इन्फो पे मेरा नंबर है। अच्छा। उसने इतना एक्सप्लोर किया फिर भी आके मेरे से नंबर मांगा। ठीक है, ये लो नंबर लो, फिर बात करो। फिर बात क्या उससे कि सर सॉरी सर, मुझे पता नहीं था कि आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो। मैं तो अभी भी मुझे गलत समझा है, मैं अभी भी डिजिटल मार्केटिंग नहीं करता, मैं सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग करता हूँ। बोला कि ठीक है सर, तूने ये मैसेज क्यों किया और कितनों को किया? आई जस्ट वांटेड टू नो, क्योंकि एकदम फ्रेशर है, एकदम फ्रेशर है, कहीं गलती ना कर बैठे। क्योंकि मुझे इस बात का डर था कि मैंने जब शुरू किया तो मुझे गाइड करने वाले लोग थे। आज के टाइम पे कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं, ऐसे मैसेजेस को इग्नोर कर देते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल ऑन लिंक्डइन। तो मैंने उससे पूछा, बोला कि भैया मैंने, फिर उसने मतलब वो भाई जैसे बात करने लगे, तो बोला कि भैया मैंने 25 लोगों को ऐसे मैसेजेस भेजे। 25 लोग कैसे कैसे लोगों को मैसेज भेजे? तो उसने क्या बोला कि उनके प्रोफाइल पे लिखा होगा डिजिटल मार्केटर या करंटली वर्किंग एज डिजिटल मार्केटर। अरे भाई, जो बंदा तेरे जैसे ही काम कर रहा होगा वो तेरे से काम क्यों कराएगा? उसने बोला कि नहीं, मैं एक्चुअली समझा नहीं, क्योंकि मैंने डिजिटल मार्केटिंग के सर्टिफिकेट खत्म तो कर दिए, बट अभी मुझे मतलब उसको वो चुल मच रही थी, मुझे पैसे कमाने करके, बट ही डजंट नोस दैट हाउ टू स्टार्ट एंड whom he should reach and how should he start talking with people then। मैंने उसको 2 घंटे बैठ के, मैंने आज तक कभी भी किसी भी बंदे को 2 घंटे बैठ के एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, बट उसके बाद बहुत एक हिलेरियस सिचुएशन एंडिंग हुई थी मेरी। मैंने उसको 2 घंटे बैठ के सिखाया, फिर अगले दिन मेरे डीएम पे आके बता रहा है थैंक यू फॉर योर गाइडेंस एंड ठीक है सर, इफ यू वांट एनी सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विस डू लेट मी नो। निकल, मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। तू मेरे काम का नहीं है। अरे यार, होता है, लाइक आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल यस, जो ये एक समझते नहीं है, बट जब समझाते हैं तो फिर भी मतलब हमें ही आके वापस वही चीज हम पे डाल देते हैं। देन लाइक ठीक है, अभी तुमने मुझे समझाया है, अभी तुम्हें मुझे सर्विसेज ऑफर करनी पड़ेगी। अभी तुम्हें मुझे हायर करना ही पड़ेगा। नहीं हायर की बात नहीं है, मतलब सर्विस मेरे से लेनी पड़ेगी। हायर के अगर उसने मतलब ऐसे एम्प्लॉय मुझसे अगर पिच किया होता, मैं ऑब्वियसली उसको इंटर्न रख लेता, क्योंकि वैसे भी मेरा इंटेंशन ज्यादातर फ्रेशर्स के लिए ही है, क्योंकि ज्यादातर फ्रेशर्स क्या करते हैं कि सर्टिफिकेट कोर्सेज कंप्लीट कर लेते हैं, बट जब एक्सपीरियंस की बात आती है तो ज्यादातर जॉब्स पे रिजेक्ट हो जाते हैं। तो मैं एक्चुअली इस चीज पे काम कर रहा हूँ। सून प्रोबेबली आफ्टर अगस्त बहुत सारे फ्रेशर्स को मैं हायर करने वाला हूँ, जिसपे 30 या 60 डेज का प्रोग्राम रहेगा, जिसपे मैं प्रैक्टिकली बैठ के डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखाऊंगा। ओके, देखते हैं वो चीज के लिए भी थोड़ा बहुत टाइम है, क्यों फिर वो लॉट ऑफ रिसोर्सेस, रिसर्च सब कुछ लगता है, तो फिर एक दिन पे स्टार्ट करके तो फिर वो चीज रन नहीं कर सकते। तो उस चीज पे अभी काम चल रही है, देखते हैं क्या है कैसा है करके। So the next question of this interview, which is what is your definition of success? Your definition, ऐसा नहीं कि किसी का लेके बता दिया हो, ऐसे नहीं, क्योंकि recent interviews पे ज्यादातर लोगों ने अपना सक्सेस का एक्सपीरियंस शेयर किया था। So yes, I just wanted to know your definition of success or your path of success, something like that. एक जब मैंने तुम्हें इनिशियली बताया कि फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ कॉलेज तक ना मेरा थॉट था टू गेट इनटू आर्मी, और आर्मी इज अ अमेजिंग जॉब यार, अमेजिंग जॉब। आज भी जब भी आर्मी को देखता हूँ सैल्यूट किए बिना तो मैं कहीं जाता हूँ। हाँ, मतलब the same thought I have, the same thought। Yeah, it's a respectful job, but the thing is कि उस पर्टिकुलर जॉब से ना, मतलब एक ही थॉट था मेरे माइंड में कि यार मैं ना अपनी फैमिली के साथ
ज़्यादा देर रह नहीं पाऊंगा if I Obviously. got into army, है ना? तो that was the thought. तो जब मैं फ्रीलांसिंग एंटरप्रेन्योरशिप में आ गया, अपनी कंपनी स्टार्ट कर ली, अभी क्या है, अभी मैं घर से ही सारा कुछ ऑपरेट कर रहा हूँ, घर से ही सारा काम कर रहा हूँ. मनी इज अ फैक्टर, आई कम्प्लीटली एग्री विद दैट. मनी इज अ फैक्टर. एक मतलब पैसे नहीं होंगे तो यार कैसे जियोगे आप अपनी लाइफ, दैट इज अ थिंग. तो बट द बिगेस्ट थिंग दैट आई call success is कि I am able to work with my family while being around my family. जो भी हो रहा है, अगर if they are facing some issue with something, मतलब घर में कुछ issue है, तो I am able to be with them. I am able to help them out in any way. It can be financial, emotional, or any way. So that is my specific thought of success, my specific कि हाँ यार this is success for me. और कल को कुछ भी हो जाए, बिजनेस किसी भी लेवल पे चला जाए, बहुत बढ़ जाए या फिर बहुत ही कम चला जाए, भले ही बंद हो जाए, बट I'll remain at this stage. और मतलब मेरी हमेशा सक्सेस की डेफिनेशन यही रहेगी, मतलब वो कभी चेंज नहीं होगी. तो दिस इज व्हाट आई थिंक अबाउट सक्सेस. मतलब यार मनी इज अ फैक्टर, आई कंप्लीटली एग्री विद दैट. बहुत सारे लोग कहेंगे पैसे नहीं कमाएगा तो सक्सेस क्या, दैट इज अ फैक्टर. बट क्या करोगे मनी का जब सही जगह पे काम आपकी नहीं फैमिली, आएगा, जब आपकी फैमिली आपके साथ नहीं होगी, है ना? so कितना yes, यार अकेला, if you are, if let's say कि आप बहुत पैसे कमा रहे हो, बट आप अपनी फैमिली से बहुत दूर हो और उनकी हेल्प भी नहीं कर पा रहे. फाइनेंशियली आप बहुत हेल्प कर पा रहे हो, फाइनेंशियली आप उनको चलो मान लो लाख रुपया भेज रहे हो ऑन अ मंथली बेसिस, है ना? बट स्टिल वो अगर आप उनके साथ रह के उनकी हेल्प नहीं कर पा रहे, या फिर उनके वो कहते हैं ना कि सुख दुख में एक साथ नहीं रह पा रहे, तो कंधे से कंधे नहीं मिला पाते. that is a bigger thing for me especially. So yeah, this is my. That was a sweet one. ऐसे रिप्लाई मैंने, to be frank, मैंने ऐसे बहुत सारे consultations इंटरव्यू किए हुए हैं, but your answer something touched my heart. अरे मैं तुम्हें बताऊं, तुम मुझे कह रहे थे ना कॉपी पेस्ट वाली सक्सेस स्टोरी मत बताना या सक्सेस थॉट मत बताना. मैं कॉपी क्या हुआ मीम भी नहीं यूज करता. ये तो आंसर है इंटरव्यू का. That's great. That's Yeah. hilarious, man. And the next question is, what are the 2 achievements that you will never forget in your life? ऐसे 2 achievements. हाँ, okay. So the first achievement you already know कि हाँ मैं फैमिली के साथ रह के मैं सारी चीजें मैनेज कर पाऊँ. This is an achievement for me. और ये टॉप लेवल पे रहेगी हमेशा. The second achievement is कि when I got into freelancing and business stuff now, there were a number of people, even my friends and relatives, who were saying कि ये फ्रीलांसिंग में इसलिए जा रहा है क्योंकि इसको जॉब नहीं मिल रही. This was their particular thought. तो मतलब और वो चीज कॉन्टिन्यूअसली चलती रही. एक तो होता है ना कि एक बंदा आया, एक बार बोला और चला गया, बट वो चीज कॉन्टिन्यूअसली चलती रही. और उसकी वजह से, उस पर्टिकुलर थॉट की वजह से, उन रिलेटिव्स या फ्रेंड्स की थॉट की वजह से मेरे घर वालों का भी थॉट प्रोसेस फॉर सम टाइम नेगेटिव हो गया या फिर चेंज हो गया, थोड़ा चेंज हो गया. और वो सारी चीज़ों को फेस आउट करके, वो सारी चीज़ों पे इतना ध्यान ना देके, मैं अभी मेरे पास मेरी खुद की 3 कंपनीज हैं. फर्स्ट इज माय मार्केटिंग एजेंसी, जहाँ पे हम क्रिएटिव स्टफ क्रिएट करते हैं, क्रिएटिव कंटेंट राइटिंग एंड स्टफ. सेकंड मेरी कंपनी है वो मीम मार्केटिंग वाली कंपनी है.
वहाँ पे हम स्पेसिफिकली मीम मार्केटिंग के लिए फोकस करते हैं, मीम मार्केटिंग, वायरल मार्केटिंग। और थर्ड मेरा एक क्लोथिंग ब्रांड भी है, मतलब वो लॉन्च कर दिया है, बट उसके प्रोडक्ट्स अभी लॉन्च होने वाले हैं, लाइक 12 सितंबर से पहले पहले प्रोडक्ट्स लॉन्च हो जाएंगे उस चीज़ पे। तो वो सारी चीज़ों को निगलेक्ट करके अपने काम पे फोकस करते रहना, और अपने काम मतलब इतनी नेगेटिविटी होने के बाद भी अपने काम में ग्रो कर पाना, दैट इज एन अचीवमेंट फॉर मी। और अभी तो फर्क ही नहीं पड़ता, अभी तो मतलब अभी अभी पहली बात तो अभी कोई भूलता भी नहीं है, अभी कोई भूलता भी नहीं, अभी पता है कि चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। तो है। नहीं, मेरे मेरे मामले में भी रिश्तेदारों ने तो बहुत बात लगाई है, बट अब वो बताने बैठूंगा तो मेरे आंखों में से शायद आंसू आंसू आ जाएंगे, तो फिर वो चीज बांटने लायक भी नहीं है। तुम्हें तो भी ताने सुनने को मिले, मुझे तो बहुत कुछ सुनने को मिला, तो मैं ये एक्सपीरियंस एक्चुअली शेयर करूंगा मेरे ऑडियंस को, बट नॉट नाउ। तो फिर मेरी ऑडियंस सोचेगी मैं एम्पैथी दिखा रहा हूँ। एट द एंड ऑफ द डे 10 में से 2 लोग तो आ ही जाएंगे कि तुम एम्पैथी दिखा के व्यूज ले। मैंने बोला नहीं, जब एक जगह पे बैठूंगा, बड़े जगह पे बैठूंगा, तब बताऊंगा, तब बोलना कि मैं एम्पैथी दिखा रहा हूँ, तब कोई नहीं बोलेगा। जब स्टार्टिंग कर रहे हैं तो फिर बोलेगा कि आंसू दे के व्यूज लेके जा रहे हैं, तो फिर एग्जैक्टली वो चीज, क्योंकि मैंने ये फेस किया हुआ है तो इसलिए मुझे पता है। ओके, and the last but not the least one, which is one secret or any tip or any hack that you want to give my audience which you have never said anyone, कि ऐसा नहीं कि मैंने किसी को बताया होगा, but it can be within you or your employees, but ऐसे एक secret hack या tip मेरे audience के लिए। Okay, so this is one thing. I have seen a lot of people out there जो क्या करते हैं, वो कोई ट्रेंड देखते हैं, वो किसी तरह का स्पेसिफिक कंटेंट देखते हैं कि हाँ यार ये चीज़ें आजकल बहुत चल रही है, ये चीज़ें आजकल बहुत चल रही हैं, ये ट्रेंड आजकल बहुत चल रहा है, तो they start copying that. This is specifically to content writing stuff, content creation stuff. Because at the end of the day सब यही पे आके टिकता है। हाँ, तो मेरा एक टिप जो एक सीक्रेट है मेरे माइंड में हमेशा रहता है, और हालांकि और भी बहुत सारे सीक्रेट हैं, बट चलो आपने एक पूछा है तो एक ही बताएंगे, इसलिए तो एक ही पूछता हूँ मैं, वरना फिर मेरे पे भारी पड़ जाएगा। एक ही बताएंगे जो आई गेस वो वर्क, जिस चीज पे वो एक्चुअली वर्क कर सकते हैं अभी से। तो दैट इज कि जब भी आप कुछ बना रहे हो ना, कुछ अपनी ऑडियंस को प्रेजेंट करने के लिए, ईदर ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, कहीं पे भी, मेक श्योर कि वो आपका खुद का हो। मेरे कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी रहे हैं जिन्होंने मुझे कहा है कि जो आप बना रहे हो ना, मतलब मैंने उनके लिए कुछ बनाया और वो कह रहे हैं कि जो आप बना रहे हो ना वो बहुत यूनिक है, वो बहुत क्रिएटिव है, बट वो अभी तक आया नहीं है मार्केट में। तो देयर इज अ फेयर कि शायद ये चीज चले ना, तो उन्होंने वो आइडियाज रिजेक्ट कर दिए, वो जो रिजेक्टेड आइडियाज होते हैं ना, वो मैं अपने पास रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने उस चीज में काफी मेहनत लगाई है उस चीज को बनाने के लिए, और फिर मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा टाइम देता हूँ, फिर उसको मैं अपने एंड से पोस्ट करता हूँ, मतलब अपने लिंक्डइन से पोस्ट करता हूँ। उसके पीछे उसकी भी एक छोटी सी स्टोरी है, वो मैं एंड में बताऊंगा। सो माई टिप टू देम इज कि जब भी आप कुछ क्रिएट करो ना, अपने थॉट प्रोसेस से क्रिएट करो, अपनी यूनिकनेस शो करो। अभी क्या है, लाइक एक छोटा सा एग्जांपल, कोई मेरा कंटेंट देखेगा, कोई मेरा मीम देखेगा या कोई मेरा वन लाइनर देखेगा, तो जब वो देखेगा ना, तो उसके माइंड में एक पिक्चर पोर्ट्रे होगी कि हाँ यार ये तो पुष्कर का लग रहा है। मतलब अगर मान लो मैंने अपना वन लाइनर किसी और कंपनी के एंड से पोस्ट किया, वहां पे मैंने अपना नाम कुछ नहीं मेंशन किया, है ना, तो भी वो चीज पढ़ के ना, या वो चीज देख के, उनको, मेरी ऑडियंस को, या फिर जो भी मुझे जानते हैं, जो भी मेरे कंटेंट को फॉलो करते हैं, उन्हें ये लगेगा कि हाँ यार ये तो मतलब पुष्कर वाला कंटेंट है। तो दिस इज समथिंग कि मतलब ये चीज आप अपने माइंड में रखो कि जब भी
आपकी ऑडियंस आपके कंटेंट को देख रही है ना, भले ही वो किसी क्लाइंट के एंड से देख रही है, भले ही वो किसी क्लाइंट की प्रोफाइल से देख रही है जहाँ पे आपका नाम भी नहीं है, तो दे शुड गेट दैट फीलिंग, दे शुड गेट दैट स्पेसिफिक वाइब कि हाँ यार ये तो आपका कंटेंट है. तो दिस इज द वन सीक्रेट दैट आई पर्सनली फॉलो. और उसी की वजह से ना मैं जितने भी यूनिक आइडियाज मेरे माइंड में आते हैं ना, मैं कर देता हूँ. मतलब मेरे माइंड में अभी 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 अगर बैठे बैठे कोई यूनिक आइडिया आ गया ना, तो मेरा मेरा ना नोटपैड साइड में पड़ा है, मैं नोटपैड पे लिख लेता हूँ. मैं नोटपैड पे लिख लेता हूँ और जब ये मीटिंग बंद होगी ना, उसके बाद मैं डायरेक्टली इस चीज पे जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने ये किया नहीं ना तो ये मैं भूल जाऊंगा. मेरी एक बुरी आदत है, मेरी एक बुरी आदत है. मेरे जो सुपर क्रिएटिव आइडियाज होते हैं ना, सुपर क्रिएटिव, वो मैं जल्दी भूल जाता हूँ, वो मैं बहुत जल्दी भूल जाता हूँ. मतलब अगर अभी मेरे माइंड में आइडिया आया और अभी मैंने उस पर काम नहीं किया ना, तो शायद उस पर काम कभी होगा ही नहीं. तो दिस इज माय थिंग जिसके साथ मैं अभी चलो थोड़ा सा फिगर आउट कर रहा हूँ कि कैसे झेलना है इस चीज को, कैसे करना है, वर्क करना है. तो दिस इज द थिंग. अब आ जाते हैं वो रिजेक्टेड आइडियाज वाली बात पे. तो देयर इज अ ह्यूज कंपनी, वो एक क्रिएटिव एजेंसी है. उन्होंने बहुत बड़े ब्रांड्स के साथ क्रिएटिव वर्क किया है, किट कैट के साथ काम किया है उन्होंने, और ऐसे बहुत बड़े बड़े ब्रांड के साथ उन्होंने और भी काम किया है. उनके सीईओ ने मुझे रीच आउट किया टू क्रिएट अ पीस ऑफ कंटेंट फॉर देम. आई क्रिएटेड अ सुपर क्रिएटिव कंटेंट जो अभी तक मार्केट में नहीं था. उस तरह का कुछ नहीं था, उस तरह का कुछ भी नहीं था. आई सेंड द फाइल और उन्होंने कहा कि आपका कंटेंट बहुत बढ़िया है, आपका कंटेंट बहुत क्रिएटिव है, बट मतलब वो जो कंटेंट था वो कम्प्लीटली उनकी गाइडलाइंस के साथ अलाइन हो रहा था और दे कुड हैव पोस्टेड. बट द थिंग इज, उन्होंने कहा कि वो ना हम अपने एंड से पोस्ट नहीं कर सकते, अपने एंड से पोस्ट नहीं कर सकते. तो उन्होंने वो आइडिया रिजेक्ट कर दिया. तो मैं 2 दिन बैठा रहा और फिर क्या हुआ, 2 दिन बाद ना एक वो था, अभी अभी रिसेंटली याद है, अभी रिसेंटली फ्रेंड्स रीयूनियन हुई थी. इफ यू आर अ फ्रेंड्स फैन तो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दैट. तो फ्रेंड्स रीयूनियन हुई थी, तो जब वो जो आइडिया था ना, वो उसी के लिए था. वो आइडिया था, what if Joey was a content writer, what if Joey was a freelance content writer. This was the idea, this was the main topic. और वो एक बहुत बड़ा कराउजल था 10 पेज का, और काफी क्रिएटिव मीम्स ऐड किए हुए थे उस चीज में, काफी ह्यूमरस था. तो वो चीज मैंने उनको शेयर की थी और उन्होंने रिजेक्ट कर दी. तो जब ये फ्रेंड्स रीयूनियन लॉन्च हुई ना, तब काफी हाइप क्रिएट हो गई थी इस चीज की, फ्रेंड्स की, है ना. तो तब मैंने ना वैसे ही पोस्ट कर दिया, अपने एंड से पोस्ट कर दिया, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल से पोस्ट कर दिया. और within a few seconds, within a few minutes, that particular thing was being featured on LinkedIn न्यूज पे वो फीचर हुई थी, वो पर्टिकुलर पोस्ट. मतलब एक रिजेक्टेड आइडिया दैट गॉट फीचर्ड ऑन LinkedIn न्यूज. तो उसके बाद मेरा एक ही थॉट था कि जिस कंपनी ने वो रिजेक्ट किया होगा वो सोच रही होगी कि यार क्या गलत आइडिया रिजेक्ट कर दिया, मैं ही पोस्ट कर लेता, मेरे ब्रांड का नाम हो जाता. नहीं होता है ऐसे, बहुत लोगों के साथ होता है. मेरे साथ ये चीज बहुत बार होती है. मैंने अभी तक ना अपने 3 रिजेक्टेड आइडियाज पोस्ट किए हैं, जिनमें से एक ये था. 2 आइडियाज और पोस्ट किए हैं, और वो तीनों मतलब कहीं ना कहीं किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे वो फीचर हुए हैं. ये वाला लिंक्डइन न्यूज पे फीचर हुआ था, एक और था वो फीचर हुआ था मेंस एक्सपी पे, और 2 आइडियाज और थे जो फीचर हुए थे मार्केटिंग माइंड के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पे. इंस्टाग्राम, लिंक्डइन सभी पे उन्होंने पोस्ट किया था. तो मतलब इससे ना खुद को ये थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है, नहीं यार सही स्टफ क्रिएट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ कहीं गलत नहीं जा रहा. कुछ कर बात पूछो. हाँ जी. नेक्स्ट टाइम रिजेक्ट हो तो मुझे भेजना, मैं किसी को बताऊंगा नहीं. Sure. And then it's time to wrap up. करने से पहले एक चीज, मेरा पर्सनल सवाल है.
how was the experience with this interview? एक मुझे जूम ने बहुत तंग किया यार, मुझे जूम ने तंग किया, बाकी सब बहुत बढ़िया है। होता है। everything else was amazing, but ये जूम ने जो मुझे तंग किया है ना, ये मेरे मैकबुक ने आज मुझे जो धोखा दिया है ना पैसा बर्बाद। और क्या यार, ऊंची दुकान की। मैं एडिट कर दूंगा, कुछ नहीं करना, मेरा भाई बैठा है ना। एडिट तो होगा ही डायरेक्टली ये चीज जा भी नहीं सकती यूट्यूब पे। नहीं जाएगी तो फिर 2 बड़े ब्रांडों का नाम खराब हो जाएगा। और क्या नहीं, बट ये अभी जो रिसेंट लास्ट 30 सेकंड्स के लाइंस है ना, ये जाएगा, BTS पे जाएगा। चलो कोई नहीं।